दोस्तों, हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनकी तारीफ में हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद उनसे बात करने का समय नहीं बचेगा। इसलिए हम यहां पर सिर्फ इतना कहेंगे, जो स्टार से सुपरस्टार और देखते ही देखते हीरो से सुपर हीरो बन गए हैं, वही है हमारे आज के गेस्ट। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम ऋतिक रोशन। Ritik, welcome to Bollywood Business. Thank you. We kept it very short and sweet. I don't think you need much of an introduction. आप बोल रहे थे कि मेरी तारीफ में आप घंटों बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कीजिए। ऋतिक, सुपर हीरो एंड सुपरस्टार, ये दो टैग्स हैं। कौन सा टैग आपको ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद, मैं इनके बारे में ज्यादा मैं सोचता नहीं हूं, क्योंकि दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सोचता हूं कि मैं एक आई एम अ लेबरर, आई एम अ वर्कर एंड आई हैव टू डू माई जॉब। ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है। और ये जो labels हैं जो very lovingly the people have bestowed on me, I have gratitude for it. I thank them, I'm very humbly I accept it. लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो I don't wake up like a superstar. I don't know what it is to feel like how you wake up like a superstar, or how you love your children like a superstar, or how you are you know you're a good friend or a good human being like a superstar. ये मतलब उसका कुछ मायना कुछ I don't it makes no sense. तो जब ये आइडिया आई, how much did it weigh? What was the pressure like? Because it's a big brand and to match up to Krish was not a small thing. Well, शुरुआत में तो प्रेशर की बात नहीं थी। शुरुआत में it was very exciting, क्योंकि मैं एक सुपर हीरो जॉनर का फैन रहा हूँ और I love science fiction. और मैं जानता हूँ कि अगर if we don't do it, if my father and I, who are a team, और इस टीम ने इतना जब सक्सेस पाके we have achieved so much, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब कि we have to take it further towards the audience, towards the public. Yes, of course. और मेरे ख्याल से it's a kind of a responsibility, a duty, कि we just have to, you know, life is about evolution, it's about progress. और उसके बाद डर सा एक माहौल पैदा हुआ जब हम लोगों ने सोचा कि अब कैसे, चलो ठीक है, we've taken the decision to make it, now how to make it, where are the budgets, how do we create a superhero of India without being able to shoot in India, as in like outdoors में if अगर आप ने सोचा कि एक्शन सीक्वेंस इन इंडिया गेट, तो how do you shoot? How do you manage exactly? बाहर in the outdoors, how do you show a superhero in India saving India? जबकि आपकी budgets don't allow you to recreate that entire set with the people and all that. It's not possible. और तो Hollywood films in contrast to them, अपनी जो budget है फिल्म की, that is about 2%, or rather I would say equivalent to one sequence in a Spider-Man. Exactly. एक sequence जो Spider-Man में जितना खर्च होता है, उतना हम लोगों ने खर्च किया है अपनी पूरी फिल्म बनानी है। और चैलेंज ये है कि people should not make the difference out. Correct. मेरे ख्याल से ये फिल्म देखने के बाद Hollywood will take a turn and say कि why the hell are we spending so much money, man? They did this in 2% of our cost. What the fuck is going on? Fantastic. I think they're gonna. How did you all achieve it? ये अचीव करना कोई मामूली काम तो नहीं रहा होगा। हमारे आर्टिस्ट्स पे we have to have faith in ourselves, in our country, in our artists of our. तो we had the faith. उन्हें अब तक किसी ने ये opportunity नहीं दी थी, और इतना faith nobody had put as much as my father put. And he said, एक decision लिया गया कि I want this film to be completely done by Indian hands. Fantastic. आपकी brain surgery भी हुई. How taxing was that and how frightening was that? Not at all. Really? I didn't get taxed, I didn't get frightened. I'm still thinking why. I don't understand. I did not feel it. मतलब रियल लाइफ में भी आप सुपर हीरो से कम नहीं है। See, I think ये सब एक एटीट्यूड और एक परसेप्शन की बात है। अगर आप ने सोचा कि मेरे ब्रेन में अभी एक होल होगा and people are going to enter the brain
I'm going to be awake, it's going to be so scary. लेकिन करना तो है ना. You have to go through it, no? Then why not enjoy it? How can you enjoy such a surgery? I swear, Komal, I enjoyed it. I was singing songs. हाँ, जो मेरे control में था, that I had to do, that I did. I researched, I found out the information about this problem from the net. I read everything about it. Actually, एक simple terms में अगर आप बताएं, simple terms में, not using medical jargon, exactly क्या हुआ था? Exactly क्या हुआ था? Simple terms is more scary than the Doesn't jargon. matter, doesn't matter. Simple terms में मेरे ब्रेन में एक लीक था. So the blood started to leak. और जब मुझे पेन हुआ आफ्टर अ स्टंट व्हिच आई डिड फॉर बैंग बैंग, जब पहले मुझे पेन हुआ तो एक सर में दर्द था. तो एक सर के दर्द को लेके आई कुड नॉट गो एंड टेल द डायरेक्टर के हेडेक है मेरा, यार आई कांट शूट, आई एम गोइंग बैक होम. Correct. सर में दर्द है. Yeah, it's a headache. Yeah, you don't take it so seriously also. तो मैंने शूटिंग की उस फिल्म के लिए फॉर 10 days. उसके बाद जब मैं घर आया तो आई हैड टू कम बैक हियर फॉर द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ क्रिश. और 3 दिन के अंदर आई हैड टू फ्लाई बैक फॉर बैंग बैंग टू ग्रीस. तो आई डिड अ सीटी स्कैन और सीटी स्कैन वाज एब्सोल्युटली क्लियर. अच्छा, कुछ नहीं आया. साइंस टोल्ड मी अगेन दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन. Hale and hearty. मैं बोला ठीक है, चलो नाउ आई एम लेफ्ट ऑन माय ओन. तो मैं करता गया. आई वेंट टू ग्रीस. आई डिड माय हेडेक इज गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स. तो 2 महीने आई लिव्ड लाइक दैट. और 2 महीने के बाद आई हैड टू गो फॉर अनदर स्केट एक्शन स्केट टू प्राग फॉर बैंग बैंग. और मैं अपने जिम में था और मैं सोच रहा था कि यार इतना एक्शन है अभी और आई एम नॉट फीलिंग, आई कांट टर्न माय हेड, यू नो, आई कांट फील द पावर, आई कांट जंप. क्या भारी सा महसूस होता था? भारी नहीं, दर्द था. दर्द. ओके. कांस्टेंट दर्द था. ओके. और साइंस ने तो कह दिया था कि कुछ नहीं है. तो मैं कंफ्यूजन में था कि 2 महीने हो चुके हैं, दिस पेन इज Why is it not going? Yeah. I have, you know, I'm not, my diet is good, my everything is good. तो ये क्या बात है? तो immediately I organized one more scan. कि 8 घंटे में मेरी फ्लाइट थी to Prague. I said ये फ्लाइट के पहले I have to check this out. और तब जब चेक किया मैंने तो it showed कि मेरा जो ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई छोटा मोटा नहीं था. मेरे साथ जो होता है सब बड़ा ही होता है. आलीशान होता है. हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक it was full of blood and the scan showed that and मेरा जो ब्रेन है it had shifted to the right like that because it was filled with blood on one side, so it had shifted the brain. So the doctors got completely aghast. They said you have to get operated right now. मैंने कहा कि तो आपके फैमिली वाले तो एब्सोल्युटली डर गए होंगे. हाँ, लेकिन मैंने कहा कि 8 घंटे में मेरी फ्लाइट है, क्या मैं ये शेड्यूल करके मैं आ सकता हूँ? बोला कि इफ यू टेक दिस फ्लाइट यू विल पास इनटू अ कोमा एंड देन फ्रॉम देयर टू कम बैक इज 50-50. ओह माय गॉड. अच्छा चलो ये बात है तो देन आई हैव टू कैंसिल दिस फ्लाइट. ठीक है. तो व्हाट डू वी हैव टू डू? तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू ड्रिल होल इन योर ब्रेन एंड लेट द अलाउ द ब्लड टू कम आउट. तो आई सेड ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट. आपके साथ कौन था उस वक्त जब डॉक्टर से बात हो रही थी, ये सब बातें हो रही थी? मैं अकेला था और पता नहीं क्या कहाँ से कैसे बात फैली और माय मॉम केम, सुजैन केम, माय डैड केम. और तब उनके चेहरे को देखकर तो मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू बी द सुपर हीरो एंड इट वाज सो इजी. एक बार जब मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू डू दिस, देयर इज एक्चुअली आई डिडंट इवन डिसाइड. द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश ऑन माय लाइफ हैज बीन सो ट्रेमेंडस क्योंकि शुरुआत से लेके इसके अंत तक आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बैटल्स, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल. तो हर मौके पर मैं अपने आप को पूछता था कि व्हाट वुड क्रिश डू. ऐसे ही मैं, यू नो, आई शुड जस्ट आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट वुड अ सुपर हीरो डू, and I used to get the right answer. Fantastic. And I used to go on. I actually saw blood squirt out of my brain by 3 feet. You know. It was and you were actually mind blowing. And you were actually watching all this. I was watching it. You didn't close your eyes. मैं रुक गया. मैं गा रहा था. मैं गाते ये क्या है?